Good morning, guys. In previous class, we have discussed about the client-server architecture. Also, we have discussed about peer-to-peer model. These are both types of network architecture. Okay, and today we will discuss about the types of client-server architecture. Okay, so basically, in types of client-server architecture, we have one-tier architecture. Then another one is two-tier architecture, then three-tier architecture, and another one, last one is n-tier architecture. So let us discuss about the one-tier architecture. This one-tier architecture is an architecture in which the entire application resides on the user's computer. The user is allowed to access the server directly. So that means all kind of applications. Okay? It may be database, it may be file, it may be application, it may be multimedia package, whatever it may be. So वो सब कुछ एक ही कंप्यूटर में है and the user can access on its own. It may depend on the server, may not be. Okay? अगर जरूरत पड़े तो सर्वर के साथ वो कनेक्ट करेगा, अगर नहीं जरूरत नहीं पड़ता है तो भी वो अपना काम कर सकता है. Okay? सो बेसिकली ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये जो वन टायर आर्किटेक्चर यूज किया जाता है, क्योंकि बाय चांस कभी कोई प्रॉब्लम क्या होता है कि दैट फाइल में बी इरेज्ड और डिलीटेड और करप्टेड, so multiple copies must be stored. So for that reason we have to use this we have to implement one tier architecture in client server model. Okay? So उसमें होता क्या है कि भाई एक तो जनरेट तो हो गया कंटेंट, अभी यूजर ने कर दिया, तो उसकी डेस्कटॉप में भी होगा और उसके सिस्टम में, उसके बाद वो तुम्हारा जो सर्वर है, सर्वर में भी एक कॉपी सेव हो करके रखा जाएगा, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा. दिस इज कॉल्ड योर वन टायर आर्किटेक्चर. So any changes or update in the software or at server level, that will affect directly in the user's computer. Yes, exactly. That means server will automatically update all the things. I mean the operating system, the application software, antivirus package, everything can be updated. Yeah. So this is called your one tier architecture. We have office environment having 20-30 number of computers. So for that reason we have to implement a server. Instead of installing individual antivirus in each and every desktop or laptop, we may go for a client server version, and in that client server version we will only install the client part of the antivirus in our client, user side, and in the server we will install the server version. And when the server gets update, automatically it will update its all connected clients. Why I am talking about connected clients? Connected clients means that means when the user switch on the computer, then it automatically gets update from the server. Okay? जब तक स्विच ऑफ है तब तक अपडेट नहीं होगा. एक बार स्विच ऑन कर दिया, तुमने काम करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली डाटा फ्लो होगा सर्वर से. दिस इज द कॉल्ड योर वन टायर आर्किटेक्चर. Okay? And we will this is the basic example, I mean the diagram of a one tier architecture. You see, these are the clients. There is a central device that is called switch or hub. Okay? Right now we are using switch, no hub is there, and this is a file server, and other you can also add a printer also. Okay? Instead of this client 3 maybe a printer. So all these clients are connected to this server using a simple switch, and data can be any user can access this server connect. जो कि इस सर्वर में कॉन्फ़िगर किया गया, जिसको मतलब अगर कोई बाहर का कोई आके यूज नहीं कर सकता, इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स ए ऑफिस एनवायरनमेंट. लोकल एरिया जो हम बोलते हैं ना, लान लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस के अंदर है वो नेटवर्क, तो कभी भी वो बाहर का कोई एक्सेस नहीं करेगा जब तक उसको एक्सेस नहीं दिया जाता है. सो ये थोड़ा सा सिक्योर है. हाँ, उसमें हम इंटरनेट डाल सकते हैं, लेकिन थिंक अबाउट विदाउट इंटरनेट. दिस इज कॉल्ड योर वन टायर.
then come to the two-tier architecture. Okay, so in this type of client server environment, the client software is stored at client machine and the database is stored in the server. Okay, so एक तो हो गया फाइल सर्वर. ओके, ऑल दिस और यूजर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली. थिंक अबाउट ए डेटाबेस. So database is basically we are cannot be installed individually in each computer. Database always is a front end and back end concept. Front end means that whatever we are performing any task in our own desktop is called front end. Okay, and whatever the tasks are performed behind our desktop or in you can say in the server is called back end. Yeah. So database always backend. We have to store install the database in the server. Okay. Then the front end part may be it's a graphical part. Okay. It may be VB, it may be Java. Okay. So we can design a environment or a page so that we can better on we can use the front end part. I mean the इजीली. सो ये जो बैक फ्रंट एंड पार्ट है उसको हमने तो डिजाइन करके क्लाइंट में डाल दिया, इंस्टॉल होगा. सो देर इज ए कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस कनेक्शन. डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे, उसकी कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद हम उसको एक्सेस भी करेंगे. सो ये जो टू टायर आर्किटेक्चर होता है, एक तो सर्वर रहता है और सर्वर के पीछे होता है एक डेटाबेस सर्वर अलग से जोड़ा जाता है उसको, क्योंकि डेटाबेस वो फाइल सर्वर में कभी भी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी फाइल सर्वर को हैक भी कर सकता है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि डेटाबेस को हम अलग से सेपरेट करके रखते हैं. जिसको परमिशन है वो डेटाबेस तक जाएगा, जिस यूजर को परमिशन नहीं है वो नहीं जा पाएगा. ओके, यू सी दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक क्लाइंट सर्वर एंटायर, दिस वन इज ए क्लाइंट टायर. एक स्विच में कनेक्टेड है और दूसरे एक स्विच है जो सर्वर के लिए हमने बनाया है. तो उस स्विच में बहुत सारा सर्वर कनेक्टेड है, उसमें फाइल सर्वर भी है. हालांकि इसमें फाइल सर्वर हमने नहीं दिखाया, तो फाइल सर्वर ऐसे भी हो सकता है. यू सी फाइल सर्वर. ओके, सो फाइल सर्वर भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ऑल द यूजर्स, client 1, client 2, client 4, so many users are there, so they can connect directly to database server as well as your file server. okay, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो डेटाबेस सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं वो एक अलग टायर बन जाता है, architecture. Okay? So basically we are using in our database. Okay? Then come to the next tier, that is three-tier architecture. So in this type of client server model, there are three levels of communication process. The three-tier architecture divided into three parts. One is presentation, that is called client tier. Second one is your application layer, it's called business tier. And third one is called database layer, called data tier. तीन तरह का होता है. So उसमें क्या होता है, so in first layer all the clients are installed, and in second layer or middleware all the application and file servers are installed, and in third layer all the database servers are installed. Okay, middleware network is responsible for creating the communication between the client and server. Okay, so that means your first tier became a client tier. जितना भी client है उसको client tier 1 बोला जाता है. And the next one is your file server. में भी फाइल सर्वर में क्या क्या होता है कि जितना भी एप्लीकेशन होता है हमारा, में वर्ड, एक्सेल, पीपीटी या एनी काइंड ऑफ इमेज, ऑल दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन पार्ट. सो यू कैन स्टोर योर डेटा इन द सर्वर. मान लो कुछ डॉक्यूमेंट बना लिया
और उसको स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का काम, कंपनी मैं पहले बोला था फर्स्ट टायर में कि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन वी हैव टू स्टोर आवर फाइल इन मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस। So server is also a storage, we can use as a storage device, no problem। क्लाइंट को परमिशन मिलता है कि अपना डाटा स्टोर करो सर्वर में। सो ये बन जाता है तुम्हारा फर्स्ट लेयर। जितना भी एप्लीकेशन है वहीं पे हम स्टोर कर देते हैं। एंड इन सेकेंड लेयर, सॉरी इन थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर तो हो गया तुम्हारा क्लाइंट, सेकेंड लेयर बन गया सर्वर जो कि फाइल हम स्टोर करते हैं, और थर्ड लेयर बन जाता है डेटाबेस। सो वहां पे भी इंटरनेट नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड लेयर की बात हम, सेकेंड लेयर मिडिलवेयर, सेकेंड लेयर को मिडिलवेयर बोला जाता है, वो भी बिजनेस मॉडल हो सकता है, बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल जो कि हम लोग एक्सेस करते हैं, कौन सा, लाइक ऑनलाइन परचेज, उसमें क्या होता है कि एक यूजर घर में बैठता है और XYZ वेबसाइट को एक्सेस करता है, जो ई कॉमर्स साइट है, उसमें कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसमें सारे बिजनेस एप्लीकेशन है, वो प्रोडक्ट चूज करता है, फिर पेमेंट मोड में जाता है। सो एंटायर बिकेम ए बिजनेस मॉडल। सो ये जो भी इसे बोला जाता है मिडिलवेयर को बिजनेस मॉडल भी बोला जाता है। उसके बाद जब कंप्लीटली प्रोसेस मतलब पेमेंट हो जाता है, तो डेटाबेस से एक इंफॉर्मेशन आ जाता है, या उस प्रोडक्ट को डेटाबेस से हटाना पड़ता है। डेटाबेस शो करेगा हाँ एक प्रोडक्ट सेल हो चुका है, माइनस करके वो दिखाएगा अपना डेटाबेस। सो दिस इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स प्रोसेस। दिस इज 3 टायर प्रोसेस। ओके, we will go for the diagram now. You see, this is first tier, client one, then second tier, okay, एप्लीकेशन सर्वर, जितना भी एप्लीकेशन और बिजनेस मॉडल उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड वन इज योर डेटाबेस, उसमें ई कॉमर्स भी हो सकता है या डेटाबेस भी हो सकता है। जो डेटाबेस है ज्यादातर ऑनलाइन के लिए होता है, उसमें इंटरनेट है, लेकिन सिर्फ ये डेटाबेस के लिए हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनीज, multinational companies, they have their own of their offices in around the country। हैदराबाद में है, एक बेंगलोर में है, एक भुवनेश्वर में है, एक दिल्ली में है। सो दे आर कनेक्टेड ईच अदर, उसमें कोई नहीं आ सकता। दे कैन एक्सेस देयर ओन फाइल। दिस इज कॉल्ड 3 layer architecture। okay, then come to the now entire architecture। okay, so it is more than 3 tier and also known as multi-tier architecture, where the presentation, processing and data functions are divided into logically and physically. The entire architecture is usually associated with World Wide Web, WWW, or web service. The web servers provides the web service as per the client request। okay, and the good example is online shopping। okay, ऑनलाइन शॉपिंग बोलो या इंटरनेट एक्सेस भी बोल सकते हो। सो दीज आर दी, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड योर एंटायर आर्किटेक्चर। सो यू सी दी इन एंटायर आर्किटेक्चर, हियर इज द यूजर। सो यूजर का काम क्या है, जो इट विल यूज ए डेस्कटॉप और लैपटॉप, एंड इन दैट डेस्कटॉप देयर इज any kind of OS, Windows, iOS, whatever it may be, and there is a browser। so browser, you know the browser, that means where we can browse the websites। okay, we have typing a URL, okay? It has it follows HTTP and www, World Wide Web। okay? so browser में हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। वही जो बिजनेस लॉजिक मैंने बताया जो अमेज़न का, तो उसमें क्या होता है कि टोटल थिंग्स, जितना भी ये बिजनेस लॉजिक है उसमें डाला जाता है। सो कोई अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च करता है तो वो बहुत सारा सर्वर है। तुम लोग देखोगे कि उसमें कोई एक नहीं है, अमेज़न एक नहीं है। नाम तो अमेज़न है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा सेलर होते हैं। देयर रजिस्टर्ड वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट और ई कॉमर्स साइट, वेयर दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन। सो डेफिनेटली इट विल गो टू दी सेलर्स एंड, जो बेच रहा है। अमेज़न के पास हर कुछ नहीं जाता है। अमेज़न के पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जाता है कि हाँ भाई ये
कस्टमर हमारा या यूजर ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तुम्हारे से, और तुम उसको कोरियर किया कि नहीं, उसका काम इतना ही है। क्योंकि पेमेंट अमेजन को जा रहा है, बाद में सेटल होगा सेलर के साथ, पेमेंट मतलब प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कि या वापस आ गया प्रोडक्ट, ये भी है। सो ये सारे बिजनेस लॉजिक जितना भी तुम देख रहे हो वो सारे एक सर्वर में स्टोर होता है। हर कोई अपना मतलब जितना भी वेबसाइट देखो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग 10% ही खुद का प्रोडक्ट रखते हैं, बाकी 90% उसमें सेलर ही होते हैं। इट इज ए, यू कैन से इट इज ए ई मार्केट। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट तो मार्केट ओपन कर दिया, बोल दिया कि भाई हमने ये मार्केट स्पेस है या मॉल है जो कुछ भी है, और उसमें जो शॉप्स है वो क्या होता है, इंडिविजुअली होता है। हम हमारा मर्जी, हम किसी के पास भी जा सकते हैं। लाइक दिस ई कॉमर्स साइट, दे हैव क्रिएटेड ए प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स, various kind of products through online. Okay, so it's a responsibility of the seller how to sell its product, okay, his or her product. So these are called your business logic, उसमें सब कुछ होता है। Finally there is a database, okay, that uses internet. डेटाबेस तो अब देखो, ऑफिस का डेटाबेस जो है उसमें इंटरनेट नहीं है, लेकिन जो ऑफिस का डेटाबेस मान लो पब्लिक डेटाबेस हो जाता है, ये एक पब्लिक डेटाबेस है, ठीक है, तो उसमें जो होता है वो पब्लिक डेटाबेस, उसमें जो कुछ भी होता है। तो ये जो इंटरनेट हम यूज करते हैं उसमें, उस डेटाबेस में, विदाउट हैविंग इंटरनेट वी कैन नॉट एक्सेस। सो फाइनली ये हम मान के चलेंगे कि भाई सब कुछ हो गया, फाइल सर्वर हो गया, यूजर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, साथ में जुड़ गया इंटरनेट। दैट बिकेम इंटरनेट। जब से जुड़ जाता है वो बन जाता है एंटायर। जब तक इंटरनेट नहीं है वो 3 टायर ही रहेगा, जो कुछ भी होगा 3 टायर, यूजर, फाइल सर्वर और बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस, वो कंपनी के अंदर ही होगा। कोई बोलेगा नहीं मैं एक साइट बना रहा हूं और मेरा जो एम्प्लॉय है वो लोग ही खरीद सकते हैं उसको, और कोई नहीं खरीद सकता। और वो कहां खरीदेंगे, जब ऑफिस में बैठेंगे तब वो साइट एक्सेस होगा, हो सकता है। दैट इज 3 टायर, क्योंकि उसमें इंटरनेट नहीं है। वो खुद का सर्वर बनाया, ऑर्डर ले लिया, वो देखा कि भाई ठीक है इतना इतना ऑर्डर मिला है, आप घर पहुंचा दो उनका सामान, हो सकता है कंपनी के ऐसा प्रोविजन है, कंपनी का दे सकते हैं। बट ये जो जनरल है, पब्लिक के लिए जो बनाया जाता है ई कॉमर्स साइट, उसमें इंटरनेट जरूरी है। सो एंटायर मीन्स योर ई कॉमर्स साइट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ए एंटायर आर्किटेक्चर, जहां पे भी यूजर होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, ब्राउजर भी होता है, इंटरनेट होता है और डेटाबेस होता है। So this is about your entire benefits of entire architecture. It is very secure compared to security means, yes, lack of security is there, but day by day we are increasing the security types of various kinds of security features. क्योंकि अगर सिक्योर नहीं होगा तो पेमेंट कैसे होगा, कोई हमारा हैक करके ले सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी हम पेमेंट मेथड यूज करते हैं, है, तो कोई भी हैक कर सकता है, हमारा अकाउंट खाली हो सकता है। तो इसकी वजह से ये सिक्योर तो है, लेकिन फिर भी ये और उसमें सिक्योरिटी बढ़ाया जा रहा है। एंड इजी टू मैनेज, यस इजी टू मैनेज, घर बैठ के आराम से तुम खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एंटायर को, क्योंकि वो कहाँ पे सर्वर है किसी को पता नहीं। कोई ई कॉमर्स साइट का वेब सर्वर कहाँ पे है किसी को पता नहीं। हमारा काम है भाई परचेज करो, हमने परचेज कर लिया, पेमेंट कर लिया, हमारे घर के पास आके सामान पहुंच गया। सो दीज आर द स्केलेबल। इफ यू नीड टू ऐड मोर रिसोर्सेज टू यू कैन डू इट पर टायर, मतलब विदाउट अफेक्टिंग द अदर टायर्स। सो दैट मीन्स यू कैन ऐड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और यूजर्स। लाइक ई कॉमर्स में होता क्या है, उसमें अब नंबर ऑफ यूजर कोई लिमिटेड तो नहीं है। कोई भी ई कॉमर्स साइट में 5000 यूजर रजिस्टर कर दिया, वही 5000 नहीं, एंटायर इंडिया में जितना भी लोग हैं कर सकते हैं रजिस्टर कोई भी साइट में।
तो ये जो है स्केलेबल, मतलब यूजर रजिस्ट्रेशन हुआ इसका मतलब नहीं वो सर्वर बदल दिया अमेजन ने या फ्लिपकार्ट ने। यूजर रजिस्ट्रेशन हुआ, वो ज्यादा यूजर हो गया तो बैंडविड्थ को बदल दिया, ज्यादा यूजर हो गया तो 4-5 पेमेंट गेटवे डाल दिया उसमें, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है, वो कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बदलाव, मतलब चेंजेस जरूरी नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेबल। हम यूजर जोड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल, apart from isolated scalability you can also expand each tier in any matter, in any manner that your requirement dictate। okay? उसमें क्या होता है कि that you can expand the business like anything। आज इस स्टेट में तुमने इंप्लीमेंट कर दिया, बोलो दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, एंटायर वर्ल्ड में हो सकता है। एंटायर वर्ल्ड में जाने के लिए अब देखो वो जो साइट है ना, 3-4-5 तरह का होता है। ज्यादातर इंडिया के लिए हम क्या देखते हैं, xyz.co.in या amazon.co.in। अगर amazon.com करेंगे वो चला जाएगा यूएसए। तो उसने क्या किया, वही साइट है, अमेजन नाम डोमेन सब कुछ है, नाम तो सेम है लेकिन डोमेन को अलग कर दिया, इंडिया के लिए अलग साइट बना दिया जो कि प्रोडक्ट इंडिया का ही दिखाएगा उसमें, और पेमेंट होगा रुपीस में। लेकिन यूएसए साइट हम चले जाएंगे, दिखाएगा हमको सब कुछ लेकिन पेमेंट होगा डॉलर में। उसमें से अगर इंपोर्ट परमिशन है उस आइटम का तो वो इंपोर्ट करके दे सकता है हमें, नहीं है तो वो मना कर देगा। सो दीज आर द थिंग्स। So this is all about your entire architecture, and in next class we will discuss about something more regarding wireless LAN and GSM technology, everything day by day we will discuss. Thank you.